तुषार शर्मा केस, जहां पर एक भोपाल पुलिस उसकी मौत को एक तरीके से सामान्य मौत दिखाने के लिए और जज सास को बचाने के लिए एक के बाद एक शायद जानबूझकर नशे की हालत में गलतियां करते हुए चली जाती हैं। आज इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से भोपाल पुलिस ने जज को बचाने की एक नाकाम कोशिश की। आज कमेंट सेक्शन में भी हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पिन कर देंगे ताकि अब तमाम लोग उसे पढ़कर समझ सकें कि जो तुषा की जो मौत है वो कोई सामान्य मौत नहीं है, एक बहुत बड़े साजिश को छिपाने की एक नाकाम कोशिश की जा रही है। और फिलहाल के लिए जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि तुषार शर्मा, ये जो वीडियोस आप देख रहे हैं, यहां पर इसकी मौत के बाद इसकी लाश सड़ने लगी है। 8 से 9 दिन हो चुका है, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे भोपाल में कोई भी ऐसा सिस्टम या डीप फ्रीजर नहीं है जहां पर -80 डिग्री सेल्सियस हो और उस लाश को रखा जा सके। लेकिन इस पर भी अपने अपने तर्क देके बताया जा रहा है कि यह सिर्फ और सिर्फ केस को गुमराह करने की एक नाकाम कोशिश है। लेकिन तुषार शर्मा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जब वो जिंदा थी तो सुनिए किस तरीके से उसके ससुराल वाले उसे बेइज्जती करते थे, उसके खिलाफ आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल करते थे। हमें शर्म आती है उस तरीके की बातों को कहीं किसी को बोलने में भी, खुद अपनी बहू के लिए जो ससुराल वाले किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले वो सुनिए, अंग्रेजी में है और आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि इसमें जो पूरी कहानी है ना, आपको लबोलबाब अच्छे से समझ आ जाएगी। I want to understand like why those questions have to arise as to beta if you have slept with other people. Who asked this? Was there any Who asked this? was there any point Who asked this? amongst distribution? I didn't say slept with anybody. I said the Did any you kind do- of intimacy. Yes. Did you do it for a favor? Did you do it to get some monetary benefit or some favor? When was this conversation? Ah, Sundo. What is the context? She was saying that he keeps accusing This me. is- He says somewhat. It's a very foul word and it's not the way it's used. It's not to be said. He said he's never said that. I don't know. He said and we said we don't know. But otherwise also I said, look, I have worked with Reshampura, Gwalior mein I have worked with prostitutes. Some people do it out of compulsion. उनके पास जीवन का और कोई जरिया नहीं. Some people sell their brains so they earn. They are also selling our brains and so we earn. Some people sell their bodies so they earn. There's no problem. But some people do it to earn, to climb the social ladder. Is there any such thing? So she said, never, it's never happened. So And I said, any other thing that even after the marriage, whatever has happened has happened. Right. But will you waver on these aspects? She said, no, it's nothing. I said, it's fine, then you come like an open slate. Someone said that she's had multiple. I said, it may be multiple or whatever. So in that context, I asked that will this kind of commitment to the marriage last even after the marriage? जो भी पीछे हो गया सो हो गया. that brings me to the And I second was- question. हाँ, Uस that, time पे the second follow-up question was, will you do it in the future? yes. Is that not a relevant question? Isn't that a relevant question? He said to your own babu. Why not? To any human being, I would ask the question. Somebody who's telling who has had this kind of an intimacy in the past, So do you feel having multiple partners at one point, not at the same time? you Yes. will not. Is it not relevant to ask that after marriage also will it continue? Because sometimes it becomes a habit. Then Promiscuity, it can be a habit. why was that question there? Why not? Why not? Once this has come to my knowledge that it's not one partner which she disclosed, she hid about other people also. She Yes. said, yeah, see, I asked, see, Stayed with you. एक minute. She said, ki, yes, I've been with other people also. I said, to what extent? And why was that? She said, no, it was just, I mean, hanging out and hanging out like dating. You know what you understand by Yes. dating. I said, I don't understand, but I understand what is sexual intimacy. Yes. So was it of that level? She said, yeah, sometimes it has been. Yes. So all I wanted to know is, I mean, are you trying to cross-question me? What are you doing? What are you doing? I'm not cross-questioning. No, it is my right to ask my daughter-in-law. Ki agar if you have been Will having, you be going out with other men? why not? Why not after Why marriage? not? Why It not? will not be allowed. Of course, This yes. is just not allowed. Of course, yes. Exactly. In our Why is it even a households, it's not question? allowed. Why not? Bhaiya, please tell me you find it otherwise. Do you think it's a valid question to ask your bahu if she is going to hook up with other men? But जिस तरीके से कॉन्वर्सेशन हो रहा है, शादी के पहले बात नहीं की क्या? No, she has not told. She has not शादी told. के Who बाद has not told you बाद that? में No, she has not told. ये She has आया not told कहाँ us. से? She has told Samarth.
उन दोनों के बीच में था या और why are we discussing? I didn't want to hear all those things. इसलिए नहीं है मैं भी नहीं था इसमें, but it is pinching me कि अगर It should pinch you. a motherly figure, This is being done a by a motherly sister. figure in the house is asking such questions to her own bahu. By a I bahu don't get who it. are- see, Do you find Bahu it is a daughter. Bahu is a daughter. She could have asked her daughter also the same question. see, I would have She checked would my ask her daughter daughter also. Yes. from anything. See, that is the pride of the family. I want to understand why you are hurt by this. Why you are hurt? I don't understand why you are not hurt by this. But what is the hurt? Tell me what is the hurt about? तो सुना आपने, ट्विशा जब शादी कर इस घर के अंदर आई थी, जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो उनके पति हैं वो दूध में अंगूठी खोजने की कोशिश कर रहे हैं, और जहां पर जो ससुराल वाले हैं कि ट्विशा इज दी विनर कर उसे संबोधित भी कर रहे हैं, और पूरा परिवार खुश है। जैसा कि मैंने आपको कल वाले वीडियो में भी कहा था कि शादी की असली पहचान कब होती है, जब ससुराल में जितने भी लोग गेस्ट आए होते हैं वो चले जाते हैं, आपके जो शादी में आए होते हैं दोस्त वो सब चले जाते हैं, उसके बाद असली सच्चाई सामने आती है। और ट्विशा को भी जब असली सच्चाई पता लगी कि जो उसके पति हैं किस तरीके से उसे जलील करते हैं, जो उनकी सासू माँ है जो जज हैं, बावजूद इसके वो मरने के बाद, ट्विशा के मरने के बाद 46 कॉल करती हैं, और 46 कॉल किसी ऐसे लोगों को नहीं, बड़े से बड़े जजों को कॉल किया जाता है, बड़े से बड़े रसूखदार लोगों को कॉल किया जाता है। क्यों किया जाता है ये बात तो खुद ट्विशा की जो सासू माँ है वो बता पाएंगी, लेकिन बताया ये भी जा रहा है कि इस केस को रफा दफा करने की कोशिश भी अंदर खाने चुपचाप की जा रही। क्या है पर्दे की पीछे की कहानी, जानेंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए। तो देखा और सुना आपने किस तरीके से एक सास जो जज हैं, पढ़े लिखे समाज से आती हैं, वो साफ तौर पे अपनी बहू को प्रोस्टिट्यूट कह देती हैं। ये कहीं से भी एक सभ्य समाज का हिस्सा नहीं है। आप अपने ही घर में रहने वाली किसी महिला को इस तरह के शब्दों से कैसे संबोधित कर सकते हैं या किस तरह से कह सकते हैं। आपने एक ऑडियो सुना जिसके अंदर साफ तौर पर जब ट्विशा जिंदा थी तब उस पर इस तरह से आरोप लगाए जा रहे थे, लांछन लगाए जा रहे थे, लेकिन अब जब उसकी मौत हो गई है तो एक मैं आपको वीडियो और दिखाती हूँ इन्हीं गिरिबाला सिंह का, जो जज सास हैं, इनका ज़रा वीडियो सुनिए किस तरह से ये अपनी बहू की मौत हो जाने के बाद कैसे बहुत ही नॉर्मल अंदाज में एक बात कह रही हैं। पुलिस ने जब लॉक कर रखा ऐसे मेरे पौधे मर जाएंगे, यू डू योर वर्क, आप जितना कर सकते हो। मेरे लिए तो हर पौधा इज लिविंग एंटिटी, हमें बचाना है उसको। तो सुना, एक लड़की, एक घर की बहू जो मर गई है, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी जो लाश है वो मॉर्चरी में रखी हुई है, उसका परिवार परेशान है, लेकिन यहाँ पर जो सास हैं वो साफ तौर पे कह रही हैं कि हमारा भी काम है, पुलिस वालों ने घर को पूरा लॉक कर रखा है, सील कर रखा है, जो इनके पौधे हैं वो वहाँ पर सूख रहे हैं। बात गलत नहीं है, क्योंकि जो लास्ट में ये कह रहे हैं कि हर जीव की जो जीवन है वो उनके लिए ज़रूरी है। तो क्या यहाँ पर इन मैडम से पूछिए कि क्या जो इनकी बहू थी, क्या उसका जीवन इनके लिए ज़रूरी नहीं था? पौधों का जीवन जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी उस लड़की का भी जीवन था। आखिर जब ट्विशा की मौत हो गई उसके बाद किस तरह से ये उसके कैरेक्टर को गलत दिखाने की कोशिश कर रही हैं, हर कहीं मीडिया में आकर उसके बारे में गलत कहने की कोशिश कर रही हैं, मरने के बाद भी कह रही हैं और मरने से पहले भी उसके मुंह पर ये सारी चीज़ें वो कह रही थी। अब आपने जो सारी चीज़ें देखी या जो भी वीडियो वगैरह देखा, उसको समझने के लिए आपको कुछ चीज़ों को जानना और समझना होगा। एक तो परिवार की गलती, ये जो गिरिबाला सिंह है अगर ये सच्ची हैं, अगर इन्होंने सच किया है, ट्विशा ने खुद मौत को गले लगाया है, तो फिर कई सारी ऐसी गलतियां हैं जो अब इन लोग की निकल कर सामने आ रही हैं और वो ये गलतियां नहीं करती। और साथ ही साथ जो पुलिस वाले हैं, जितने भी पुलिस की टीम है जो भी इस केस को सॉल्व कर रही है, उनसे भी बहुत ज़्यादा गलतियां हुई हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ 5 पॉइंट बताती हूँ, फिर इन्हें समझाने की कोशिश करूँगी। देखिए, जो पहली गलती मानी जा रही है वो माना जा रहा है मौत का समय, क्योंकि एफआईआर में दर्ज है कि 10:50 पर ट्विशा की मौत हुई, लेकिन एक जो सीसीटीवी सामने आया था ट्विशा के घर का, वहाँ पर साफ तौर पे देखा गया कि 8:20 पर उसकी जो बॉडी है उसको उतार कर कुछ लोग नीचे ला रहे हैं। अब ये गलती क्यों है इसको आगे मैं आपको बताऊंगी। अगली बात यह है कि देखिए, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई या जो भी पुलिस कह रही है कि एक ऐसी चीज़ थी, एक ऐसी बेल्ट थी जिसके ज़रिए जो ट्विशा है उसकी मौत हुई, तो वो पुलिस के हाथ में है ही नहीं। मतलब जब ट्विशा की मौत हुई, जब पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को सौंपा गया, तब वो बेल्ट पुलिस के पास थी नहीं, लेकिन पुलिस ने कह दिया कि हमने जो बेल्ट है वो डॉक्टर्स के पास भिजवा दी है। लेकिन अब यहाँ पर होता क्या है कि जब डॉक्टर्स पोस्टमार्टम करते हैं तो साफ तौर पर कहते हैं कि हमारे पास कोई बेल्ट नहीं है। तो ऐसे में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जितनी भी मार्क आए, गले पर ऐसा मार्क था, इतने सेंटीमीटर का मार्क था, वो उस
चीज़ से यानी उस बेल्ट से कैसे मिलान हो पाया, डॉक्टर्स ने कैसे उसका मिलान किया, इस पॉइंट को भी आगे समझेंगे। इसके अलावा आप यूँ सोचिए, जो एफआईआर लिखी गई, जो भी पुलिस के द्वारा पूरी रिपोर्ट बनाई गई, उसके अंदर हाइट अलग लिख दी गई, एज में अंतर पाया गया है, दोनों एक ही एफआईआर, दोनों में अलग अलग एज लिख दी गई है। पुलिस ने कहा कि हमने जो बॉडी है वो परिवार को सौंप दी है, लेकिन असल में अगर आप जानेंगे तो वो मॉर्चरी में रखी हुई है। यानी कि जो पूरी रिपोर्ट बनती है पुलिस के द्वारा, उसमें आप यूँ समझिए कि नशा फूंक के पूरी रिपोर्ट बना दी गई है, जो भी मन में आ रहा है वो लिख दिया गया है। इसके अलावा जो पूरे जो एफआईआर लिखी गई उसके अंदर जो जब मौत हुई है वो 12 तारीख है, लेकिन यहाँ पर 15 मई मेंशन कर दिया गया। सोचिए, यानी 2 दिन तक लड़की जिंदा थी। और अगर ऐसा है पुलिस के अकॉर्डिंग 12 तारीख को अगर मौत हुई है, जो सीसीटीवी के आधार पर, जो लोगों के आधार पर, उसके परिवार के आधार पर, लेकिन पुलिस अगर कह रही है कि 15 मई को हुई, तो ये जो 2 दिन का गैप, मतलब ये जो 3 दिन का गैप हो, यानी उसमें वो जिंदा थी, उसे अस्पताल ले जाया जाता था। तो ये सारी जो गलती हैं ये भी पुलिस को पूरी तरीके से फंसा रही हैं और दिखा रही हैं किस तरह से वो कि जो जज गिरबाला सिंह है उनका साथ दे रही है। अब आप देखिए, ये जो सीसीटीवी है इसमें अगर आप देखेंगे जो त्विषा है वो ऊपर की ओर जा रही है। टाइम इस वक्त सीसीटीवी का जो है वो गलत है, लेकिन जब इसकी पड़ताल की गई, सारी चीज़ें चेक करने की कोशिश की गई, तो पता लगा 7:20 पर जो त्विषा है वो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जा रही है। अब इसके आगे का वीडियो हम आपको नहीं दिखाएंगे क्योंकि जो बॉडी है उसको नीचे घसीट कर लाया जा रहा था, लेकिन वो वक्त था 8:20 का, यानी कि मोटा मोटा 1 घंटा। अब उस 1 घंटे के अंतराल पर जो बॉडी को नीचे लाया जा रहा है, दिख रहा है उसमें 3 लोग हैं जो घसीट रहे हैं उस बॉडी को। अब उसको जब नीचे लाते हैं तो आपने साफ तौर पे समय देख लिया। इसके बाद होता क्या है, जो पुलिस की अगर आप एफआईआर कॉपी देखेंगे या पुलिस ने जो टाइम दर्ज किया है वो है 10:50। अब ऐसे में सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये उठता है कि अगर सच में त्विषा की मौत जो है वो 10:50 पर हुई थी और 8:20 पर उसे नीचे लाया गया, तो इतने अंतराल में यानी 8 से लेकर 10:50 तक, इस पूरे अंतराल में त्विषा को हॉस्पिटल क्यों नहीं ले जाया गया, उनके परिवार को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया गया, ये कहते हुए कि जो बच्ची है वो अभी जिंदा है, ये क्यों कह दिया गया कि उसकी मौत हो गई है 8:20 पर ही। इसके अलावा ये जो पूरा आप देखिए मोटा मोटा अगर आप समझेंगे 1.5-2 घंटे का पूरा अंतराल है इस बीच में, तो अगर वो जिंदा थी, क्योंकि पुलिस ने अपने जो डेटा है उसमें मेंशन किया 10:50, तो अगर वो जिंदा थी तो एम्बुलेंस बुलाकर, डॉक्टर्स को बुलाकर पुलिस को इन्फॉर्म किया जाना चाहिए था, ये जो गिरबाला सिंह है, जो सास हैं, जो उनके बेटे हैं, उनके द्वारा। बल्कि ऐसा कुछ नहीं किया जाता। उसी मिनट में, मतलब उसी टाइम पर ये क्या करती हैं, 46 से ज़्यादा कॉल करती हैं बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को। इन्फ्लुएंसर्स से कहने का मतलब ये है कि उसमें कुछ जज शामिल थे, कुछ बड़े बड़े आप यूँ समझिए बिजनेसमैन शामिल थे, मेडिकल टीम के लोग थे। तो आखिर ये जो सास है ये क्या करने की कोशिश कर रही थी? क्या इन्हें समझ में आ गया था कि इनकी बहू के साथ क्या हो गया है? क्या इसीलिए मेडिकल टीम के साथ साठगांठ कर रही थी? क्या ये बड़े अधिकारी को कॉल करके अपने आप को बचाने की कोशिश में लगी हुई थी? उतनी देर में अगर ये 46 कॉल वहाँ पर कर सकती हैं तो क्यों पुलिस को कॉल नहीं किया गया? क्यों डॉक्टर्स को इन्वॉल्व नहीं किया गया? क्यों फ़ौरन उस लड़की को, त्विषा को, अपने घर की बहू को ये अस्पताल लेकर नहीं गए? पहला पॉइंट। अब अगले पर आते हैं, जो पुलिस ने एफआईआर मेंशन किया। भाई एक एक करके आप पुलिस वालों की गलतियां समझिए। दरअसल देखिए, एफआईआर जो है वो एक प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर पूरी शुरुआत से लेकर लास्ट तक सेम ही डिटेल होती है किसी भी शख्स के बारे में। अगर उसकी एज 30 साल है तो कई बार अगर फिल करना पड़ रहा है 30 साल ही लिखी जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो पुलिस है उसने क्या किया है कि कुछ हिस्सों में जहाँ पर एज मेंशन करनी है वहाँ 31 लिख दी है, और कुछ हिस्सों में त्विषा की एज जो है वो 33 लिख दी है। जो पुलिस विभाग है वो किस तरह से लापरवाही के साथ काम कर रहा था। अब अगले पॉइंट पर आते हैं, यानी कि जो बेल्ट वो गायब है, जिसे कहा जाता है लिगेचर मटेरियल। यानी कि अगर किसी शख्स ने ऐसा कोई कदम उठाया है और उसके गले पर कोई निशान बन रहे हैं, कोई मार्क्स बन रहे हैं, तो वो किस चीज़ के बने हैं, कौन सा ऐसा कपड़ा है या बेल्ट है, तो वो चीज़ जो है वो गायब है। गायब कैसे है? तो जब पुलिस की टीम को कुछ देर बाद बुलाया जाता है, आप समझिए 10:50 पर जब वो टाइम लिख रहे हैं, यानी कि 2 घंटे के गैप पर वो लोग आए। जब वो वहाँ पहुँचते हैं, जब अस्पताल ले जाया जाता है बॉडी को, फिर पोस्टमार्टम वगैरह के लिए भेजा जाता है, तो समझिए इतनी देर तक पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन तो सब कुछ किया, लेकिन वो चीज़ ही नहीं ढूंढी जिसके ज़रिए उस लड़की ने ये सारी चीज़ें उसके साथ हुई या उसकी मौत हुई। यानी कि जैसे समझिए किसी का मर्डर होता है तो पुलिस हथियार ही ना ढूंढे, तो सेम उसी तरीके से कि वो जो बेल्ट थी वो पुलिस को नहीं मिलती। लेकिन जब इस पूरे मामले में पूछताछ की गई पुलिस वालों से, तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि देखिए हमने डॉक्टर्स के पास भिजवा दी है। अब होता क्या है कि बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है त्विषा की। अब जब बॉडी का पोस्टमार्टम हो जाता है, पुलिस पूरी रिपोर्ट बना देती है, हर एक टाइमिंग के साथ सारी चीज़ें आ जाती हैं, जो डॉक्टर से सारी रिपोर्ट बना देते हैं। लेकिन
बार बार मीडिया सवाल करती है कि सर क्या वो बेल्ट मिली, क्या वो बेल्ट मिली, तो पुलिस वालों ने तो कह दिया कि हमने डॉक्टर्स के पास भेज दी। लेकिन जब डॉक्टर से सारी बात पूछी गई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट करने वालों से पता किया गया, तो पता लगा कि उनके पास वो बेल्ट पहुंची ही नहीं। तो ऐसे में ये भी एक सवाल है कि अगर किसी शख्स के, जैसे अगर मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूं, यहाँ पर गले का एरिया है, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, इसके ज़रिए त्विषा की जो प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट के तहत सामने आई है, तो इस पर आप देखिए कई तरह से लाइनिंग बना रखी है, निशान बना रखे हैं। तो यहाँ पर वो कैसे माना जाएगा या कैसे इस चीज़ की पुष्टि करेगा कि वही बेल्ट थी, उतना ही चौड़ा, उतना ही मोटा है? क्या पता बाद में लाकर कोई और बेल्ट दे दी जाए, कोई और ऐसी चीज़ दे दी जाए जिससे कहा जाए ये सारी चीज़ें हुई हैं। क्या पता पूरा केस बनाया जा रहा है। तो इसीलिए जो साक्ष्य हैं, जो एविडेंस हैं, वो पूरी तरीके से पुलिस वालों के पास नहीं है। और जो मेन एविडेंस जैसे बेल्ट कहा जा रहा है, वो तो पुलिस वालों के पास पहुंची ही नहीं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है सीसीटीवी के आधार पर ही उठ रही है, दूसरी है बेल्ट, यानी एक टाइमिंग जो मरने की टाइमिंग है और दूसरी बेल्ट ना मिलना। इसके अलावा जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आई है, जिसके अंदर साफ तौर पे कहा गया कि उसके गले पे मार्क है या ऐसी चीज़ें निकली, उसमें कहीं ना कहीं उंगलियों पर चोटों के भी निशान पाए गए हैं, खोपड़ी पर यानी सिर पर भी चोट के निशान पाए गए हैं। और ये सारी चीज़ें ये पूरा दावा कर रही हैं पूरी तरीके से कि त्विषा के साथ कुछ गलत हुआ है। क्योंकि आप देखेंगे 7:20 पर अगर वो ऊपर जा रही है, तो अगर कोई मरने का सोच रहा है या उसकी दुनिया बिल्कुल ही उजड़ चुकी है, वो कुछ ऐसा कदम उठाने वाला है, तो कोई भी शख्स ऐसे हेडफोन लेकर ऊपर नहीं जाएगा। ये जो त्विषा की बहन है, उन्होंने भी कई बार आकर बोला। इसके अलावा त्विषा की बहन जो एक नैना है, वो सामने आई थी मीडिया की और उन्होंने कहा था कि अगर आप पूरे तौर पर देखेंगे कि तो जिस जगह सीसीटीवी लगा हुआ है, उसी जगह त्विषा को सीपीआर दिया जा रहा है। आप यूँ सोचिए, उसकी सिस्टर ने बिल्कुल सही बात कही कि एक शख्स, आप यूँ समझिए, जो मर गया है या जिसकी हालत बहुत गंभीर है, वो आधा स्टेयर्स के ऊपर लेटा है, आधा नीचे, बल्कि आप उसे एक समान जगह पर रखेंगे। अगर उसने छत पे ऐसा कोई कदम उठाया, किसी कमरे में उठाया, वहीं पर रखते, आप उसे नीचे लाकर उस घसीट कर पहले नीचे लाए हैं, बॉडी उसकी आधी नीचे आधी ऊपर पड़ी हुई, और ऐसे में आप उसे सीपीआर दे रहे हैं, तो सिर्फ ये पूरी तरीके से ढोंग है। उसने साफ तौर पर कहा कि सीसीटीवी लगा था, इसीलिए वो लोग उस बॉडी को वहाँ पर लेकर आए और सीपीआर देने की कोशिश की, ताकि कल को हमारे बचने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाएं। अब आपने ये सारी चीज़ें समझ ली, लेकिन अब आप समझिए कि सच में जो त्विषा का शव है, ये जो डेड बॉडी है, क्या वो सड़ने लगी है? उनके पिता ने जो सारी चीज़ें बताई हैं गिरिबाला सिंह को लेकर, आप उन्हें भी सुनिए और जानिए जो पिता हैं वो कैमरे पर किस तरीके से बता रहे हैं कि उनकी बेटी के साथ कैसे क्या क्या चीज़ें गलत हुई, और जिंदा रहते तो गलत हुई, लेकिन जब वो मर गई है तब उसके बाद भी कैसे उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है और इस केस को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। ऑडियो सामने आया है जिसमें बताया जा रहा है कि गिरिबाला सिंह और आपके बेटे हर्षित के बीच की बातचीत है, तो वो कब का ऑडियो है? वो ये उस समय का है ऑडियो कि जब ये समझौता करने के लिए इनके घर पर, भोपाल इनके निवास पर गए थे, तो ये बातचीत के दौरान पता चला कि समर्थ बुरी तरीके से अब्यूज़ कर रहा है लड़की को, गलत डेरोगेटरी रिमार्क्स कर रहा है। उसको लेकर के हर्षित उनको क्वेश्चन कर रहा है कि चलो वो तो कर ही रहा है, आप उसको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, आप क्यों ऐसे सवाल पूछ रहे हैं, वो भी तो आपकी बेटी है, वो भी तो आपकी बहू है। तो बोल रही नहीं, ये तो हमारा अधिकार है। इस तरीके का जवाब उसमें निकल के आ रहा है। तो ये माइंडसेट को दिखा रहा है कि ये इनका बर्ताव कैसा था बच्ची के प्रति। पैरेलली वो उस चैट में ये भी रिवील आ गया कि मैंने जो इनके बेटे के लिए बोला था ड्रग्स का, मैंने बोला था कि ड्रग्स मेरी बेटी नहीं, आपका बेटा ड्रग एडिक्ट है। तो उसको ये मान रही है, हाँ 2 साल मेरा बेटा डिटेन हुआ है कॉलेज में, इसी को लेकर के वो बात अलग है, ऐसे करके बोल रही हैं वो। तो ये सारी चीज़ दर्शाती हैं कि जो चीज़ ये कह रही हैं, सामने दूसरे को डिफेम कर रही हैं, ब्लेम कर रही हैं, हमको अपराधी ठहरा रही हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही हैं। ये साफ उनका डेस्परेशन दिखाता है। इनके प्रमाण हैं, इनका एक इतिहास है, इनके पीछे इनके घर में एक डाइवोर्सी भी है, इनके घर में तरह तरह की चीज़ें निकल के आएंगी। इसकी पूर्ण जांच होनी चाहिए। कब का वीडियो है ये? वैसे कोई आपको मालूम मौत से कितने दिन पहले का है? का होगा ये वीडियो, अप्रैल महीने का है वीडियो, जब ये भोपाल का है ऑडियो जो है। देखिए, जब दुश्मन भी इस दुनिया को छोड़कर जाता है तो जो दूसरा दुश्मन भी होता है वो उसके लिए बुरी बातें नहीं बोलता है, और ये हमारे संस्कार हैं। लेकिन जज साहिबा जिस तरीके से उनका जो व्यवहार है अपनी बहू को लेकर, वो थोड़ा सा अपने आप में डाउट पैदा करता है। जो पिता की आपने पूरा इंटरव्यू सुना, अभी आपको समझ में आ चुका होगा कि जो पिता हैं, जिस लड़की को नाजुक से उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया, वो एक घर पर जाती है जहां पर उसे मेंटल ट्रॉमा, टॉर्चर दिया जाता है, उस दुनिया को छोड़कर चली जाती है, और उसके बाद सिस्टम
किस तरीके से उनका रोज गला घोट रहा है ये किसी से छिपा नहीं है। वो रोज लड़ रहे हैं अपनी बेटी को इंसाफ दिलवाने के लिए, लेकिन बेटी की लाश को एक तरीके से ढंग का फ्रीजर तक नहीं मिल पा रहा है। अब जब हमने भी इसके बारे में समझना चाहा कि पोस्टमार्टम हाउस में असल में होता क्या है, देखिए पोस्टमार्टम हाउस या कहें शव गृह हिंदी में उसे कहा जाता है, इसे जाना जाता है हर जगह पर। यहाँ पे डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेके आया जाता है। इसमें जो भी बॉडी की जो चीरफाड़ किए जाते हैं उसमें कई सारे सबूत मिलते हैं। हर एक मार्क्स को पढ़ा जाता है, समझा जाता है कि कैसे इसकी मृत्यु हुई होगी, क्या क्या जो चीज़ें हाथ में होगी। कहा जाता है कि एक चलता फिरता इंसान जो चीज़ें नहीं बता सकता है, एक मुर्दा उससे ज़्यादा बता सकता है कि उसका कातिल कौन है। और जिस तरीके से जो ट्रिशा के जो निशान थे शरीर पर, वो बहुत सारी कहानियां बता रहे थे। लेकिन मसलन के तौर पर फिलहाल के लिए तो अभी जो उसकी जो डेड बॉडी ट्रिशा की वो बहुत ज़्यादा कह रहे हैं कि डिकम्पोज हो रही है, उसे शिफ्ट करने की ज़रूरत है। और पूरे भोपाल मध्य प्रदेश में -4 डिग्री सेल्सियस की एक डीप फ्रीजर टाइप की आप कह लीजिए वो एम्स भोपाल में है। उससे ज़्यादा कोई भी अहम चीज़ वहाँ पर नहीं है जिससे इस लाश को बचाया जा सके, ट्रिशा की जो डेड बॉडी है उसको कंजर्व कर किया जा सके। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मुर्दा घर में या जो शवगृह होता है वहाँ पे सबसे अहम चीज़ जो होती है वो कोल्ड स्टोरेज होता है, जहाँ पे शवों को रखा जाता है। यहाँ पर कई सारे कैबिनेट्स बने होते हैं, अलमारी टाइप की चीज़ें बनी होती हैं जहाँ पे आप निकालते हैं, कई बॉडीज़ रखने के लिए बनाए होते हैं। इनमें जो मान लीजिए 2 दिन 4 दिन या 5 दिन के लिए आप किसी बॉडी को रख सकते हैं। मान लीजिए किसी की फैमिली को आना हो, बहुत दूर से आ रहा है, तो 2 से 3 दिन के लिए आप आराम से रख सकते हैं। उनमें जो सामान्य जो टेम्परेचर होता है वो 1 डिग्री से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। वहीं पर अगर आपको थोड़े से लंबे समय के लिए रखना है तो -10 से लेकर -20 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाता है। पोस्टमार्टम हाउस में एक ऑटोप्सी टेबल भी होता है। यहाँ पे एक स्टेनलेस स्टील में जो आप वो कह लीजिए एक टेबल होता है जहाँ पे पोस्टमार्टम किया जाता है, जिसमें पानी की निकासी के साथ साथ लाश को धोने के लिए नहाने के लिए शावर को रहता है कि मान लीजिए आपने किसी बॉडी को चीरफाड़ किया तो वो जब आप परिवार को बॉडी सौंपेंगे अंतिम संस्कार के लिए, तो परिवार भी उसे देखकर सहम ना जाए, तो वहाँ पर बॉडी को वॉश करने के लिए एक शावर बना हुआ रहता है और पूरे अच्छे तरीके से पानी की निकासी के लिए चीज़ें बनी होती हैं। फॉरेंसिक और सर्जिकल टूल्स होते हैं, जो घर वाले जो चाकू होते हैं बहुत ज़्यादा सब्जी काटने के लिए आते हैं, लेकिन जो सर्जिकल नाइफ होते हैं उसे बड़े आसानी से आप कुछ जो छोटा सा हिस्सा होता है उसे काट सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी फॉरेंसिक वाली चीज़ें वहाँ पर रखी होती हैं। अब यहाँ पर बॉडी के किसी हिस्से को आपको कंजर्व करके रखना है तो केमिकल रहता है जहाँ पर उस हिस्से को डालकर उसे 6 महीने 7 महीने, मान लीजिए कोई ऐसा हिस्सा है जहाँ पर कोई जहर किसी ने लगाने की कोशिश की है तो उस हिस्से को आप कंजर्व कर सकते हैं केमिकल में डालकर। पूरे पोस्टमार्टम हाउस में बड़े बड़े वेंटिलेशन लगे होते हैं, एयर प्यूरीफायर होता है, जो भी दुर्गंध आती है या उसको सड़ने से रोकने के लिए नेगेटिव एयर प्रेशर बनाया जाता है। जो डॉक्टर्स होते हैं मास्क लगा के रहते हैं। नेगेटिव एयर प्रेशर से मतलब ऑक्सीजन की मात्रा को वहाँ पे कम रखा जाता है। एडवांस वेंटिलेशन सिस्टम वहाँ पर होता है जिससे लगातार जो भी कीटाणु है या जो बैक्टीरिया वहाँ पर ना पनपें, तो ये इस तरीके की व्यवस्था वहाँ पर की जाती है। एक्सरे और मशीन लगाई जाती है ताकि जो बॉडीज़ की हड्डियों में कहां का चोट है इसे और अच्छे तरीके से समझा जा सके। टिश्यू को काट कर या इन सारी चीजों को विसरा रिकॉर्ड करने के लिए भी वहां पर ये सारी चीजें रखी जाती हैं। अब इस पोस्टमार्टम में जो चीजें आई हैं हम आपके लिए इस कमेंट सेक्शन में पिन तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये एम्स भोपाल की है। अब कहा जा रहा है कि फिर से क्यों ना इसे PM2 कहा जाए, पोस्टमार्टम 2 के जरिए इस पूरे पोस्टमार्टम को दोबारा करवाया जाए, लेकिन उसकी स्थिति अभी तक बन नहीं पा रही है। फिलहाल के लिए जो पोस्टमार्टम जब आप रिपोर्ट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। कुल 9 पेज का ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जिसमें 33 साल की ट्रिशा शर्मा, एक महिला जो उनके पति का नाम समर्थ सिंह है, प्राइवेट जॉब करते थे वो, और जो डॉक्टर जिन डॉक्टर ने किया तापेश कुमार हैं, और 2 डॉक्टर उनकी टीम में और थे। और लेकिन इस पूरे पोस्टमार्टम में लबोलवाब यही कहा गया है कि जो मौत हुई है उस मौत में कई जगह चोट के निशान हैं। एक बेल्ट के जरिए जो मौत हुई है ट्रिशा की उसके बारे में जिक्र किया गया है और ये बताने की कोशिश की गई है कि जो ट्रिशा है उसकी जो मौत की टाइमिंग भी इसमें लिखी गई है। लेकिन जिस तरीके से वनिता ने आपको बताया कि जो ट्रिशा है उसकी जो बॉडी है ये अपने आप में संदेहास्पद है कि उसकी लाश को एक सीढ़ियों के सामने जानबूझकर ऐसे एंगल पर रखा गया शायद कि उस ये
पूरी दुनिया को कल को जो भी कोई चेक करे उसे लगे कि ये तो लाश यहीं सामने है, परिवार वाले उसे जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उस पूरे कड़ी में एक इंसान थी, गिरबाला सिंह जो थी, जो कि जज हैं, सासू माँ हैं, वो जिस तरीके से आ रही हैं, जिस तरीके से जा रही हैं, मानो उन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि उनकी बहू जो कि चंद कदमों की सीढ़ियों से ये ऊपर मौजूद हैं, उनकी जान निकलने वाली है, जा रही है। उन्हें इससे मतलब नहीं है। कई बार उस फ्रेम से आ रही हैं, जा रही हैं, लेकिन उन्हें कुछ इस चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बाद में कई सारे उनके मीडिया में बयान आते हैं कि वो कहती हैं कि मैं लगातार लड़की के घर वालों से कांटेक्ट में थी, और फिर बाद में उनका एक और बयान आता है जो कि हमने सुनवाया कि पौधों को पानी देती नहीं थी, बच्चे पसंद थे तो बच्चे करना भी पसंद नहीं था। और जिस तरीके से सोशल मीडिया पर एक जो उनका ऑडियो वायरल हो रहा है उनके घर वालों का, जो कि अपनी ही बहू को प्रोस्टिट्यूट कर रही हैं, तो सोचिए ये एक लड़की जो शादी के बाद अच्छे सपने को लेकर एक घर पर जाती है, उसे लगता है कि अब ये जो मैं जिस घर में आई हूँ यही मेरा घर है, इसे मैं संवारूंगी, अच्छा बनाऊंगी। वहाँ पर जब वो उसे मेंटल यातनाएं दी जाती हैं, सोचिए आप बाहर निकलकर अपने शरीर को हवा लग सकती है, आपको घूमने जा सकते हैं, लेकिन जब दिमाग उस घर के अंदर इस तरीके से उसे चोट देने आ जाए, जो आप मुंह से बोलते हैं, आप सोचते हो कि आप मैं किसी को कुछ भी बोल दूं क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन जब आप किसी को कुछ बोलते हैं ना तो उसके दिमाग को वो चीज़ें असर करती हैं। अब ये जो बहू है, जो ट्विशा है, पति साथ नहीं दे रहा, सासू माँ एक तरीके से अच्छा व्यवहार नहीं करी, वो घर में घुट घुट कर जी रही थी। खुद ट्विशा की बहन का कहना था कि अगर उसे कुछ ऐसा कदम उठाना था तो जल्द ही घर आने वाली थी। अब ऐसा जो शख्स घर आने वाला वो ऐसे कदम क्यों उठाएगा, क्योंकि जो घर था मतलब मायका था उसे बहुत ज्यादा पसंद था, या तो इसके पीछे कोई गहरी साजिश है। और ये जो CDR 46 कॉल वाली जो बात नीता ने आपको बताई, आप समझ रहे हैं ये आई कैसे, क्योंकि इन्हें ये बताना था कि जो ऑडियो कॉल है ये हमारा ऑडियो कॉल नहीं है, और इसके लिए उन्होंने कोर्ट में खुद गिरबाला सिंह ने CDR कॉल डेटा रिकॉर्ड जज साहब के सामने पेश किया। जज साहब ने जो कॉल डेटा रिकॉर्ड जो पेश किया गया वो ट्विशा के वकीलों को भी दिया गया। और जब ट्विशा के वकीलों ने देखा कि मरने के बाद 46 कॉल किए गए हैं, पूरे दिन में मैं 2 या 3 कॉल कर लेता हूं, उसमें से 2 कॉल तो मेरे घर पे ही होता है, उसके अलावा मैं अपने किसी एक दोस्त को मैंने कॉल कर लिया, 46 कॉल किया गया है। मरने के तुरंत बाद आपकी बहू नहीं है, आपकी हालत खराब हो जानी चाहिए। आप उस वक्त जिस तरीके से घूम रही हैं, पता नहीं क्यों आप 40 कॉल करने लग रही हैं, वो भी शहर के बड़े बड़े लोगों को। अब जब इस पर सवाल उठना है तो उठाए जाने चाहिए, और पूछा जाना चाहिए उन लोगों से भी जिन्हें गिरबाला सिंह ने फ़ोन किया कि क्या आपसे कौन कौन सी चीज़ों को लेकर बातचीत हुई है। लेकिन जिस तरीके से भोपाल पुलिस पहले इस केस को दबाने की जो कोशिश कर रही है, कि पहले ही उन्होंने बोल दिया है कि जो सामान्य मौत है, जिस तरीके से FIR में गलती हुई है, आपको लग रहा है इस केस को सॉल्व करना इतना आसान होगा? क्यों एक बिटिया के पिता को आके ये कहना पड़ रहा है कि हम सिस्टम से घुट रहे हैं, सिस्टम हमें रोज मार रहा है और हमें इससे पार पाने की जरूरत है? तो हमें लगा कि ट्विशा केस को इस डिकोडिंग क्राइम के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहिए, और जिस तरीके से एक शहर के अंदर जो चीजें हो रही हैं, जज, पुलिस और एक सामान्य लोग किस तरीके से जूझते हैं, उसकी कहानी आप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी थी, और इसलिए हमें लगा इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए आप तक एक खबर पहुंचाई जाए। तब तक देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 बजे, ओनली ऑन क्राइम तक।